without wasting, let us move to the next section of revisions. And I have planned 2 chapters for you today, and both of them are from the first book only. I think our chapters will be complete for this book, and then we can focus more on the second book. Because जो second book के जो chapters हमारे अब रहते हैं, they are of more importance from the examination point of view. उनमें से questions आपके काफी बड़े बड़े आ जाते हैं. So I just planned it in that way. In this chapter, जो ये वाला पहला chapter हम कर रहे हैं, security in the contemporary world, you don't have a very long, मतलब कि कोई बहुत ज्यादा questions नहीं आते हैं. Simply आपके 2 questions आते हैं. जैसे अभी लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि most of the time you have that differential and common but differential goals, वो वाले question ऐसे ही. But as you can see the world, अभी आप लोग खुद देख सकते हो. There are certain things like US is putting certain tariffs. On another hand, there is a weapon-based war, economic war, weapon-based war. सारे तरीके के war है और हर एक कंट्री को अपने आप को जो है हर तरीके से सिक्योर करना पड़ता है. Now, why we are using the word security in the contemporary world? Because पहले जो हमारा था, most of the मतलब कि earlier security, that was based on the military actions, or you can say the conflicts among the people. Because the world जो shape up हुआ था वो बिल्कुल अलग से हुआ था. It did not shape up like आज हम जो हमें मतलब कि बिल्कुल एक वो बना था, ये अमेरिका बन गया, ये अफ्रीका बन गया, ऐसा नहीं था. They were part of continents, they were separated, there were so many problems, they acquired, they conquered. तो पहला हमारा जो सिक्योरिटी जो होता था, that was more onto the conquering. If we talk about the monarchies, if we talk about the earlier, but now there are so many other threats. The threats can be an economic, the threats can be military, the threats, of course, are today even diseases. Like abhi beach mein there was one news कि one more virus has born, मतलब कि it is born in China. And in India also there were some 65-70 cases were there. After that the news was not there, but वो भी एक डर होता है. तो सिक्योरिटी रिलेट्स ओनली टू द एक्सट्रीमली, बट हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, द डेंजरस थ्रेट्स जो हमारे कोर वैल्यूज को, इफ यू आर नॉट डीलिंग विद द सिचुएशन, इट मे हैम्पर द एंटायर वर्किंग ऑफ द कंट्री. लेट अस नाउ कम विद द ट्रेडिशनल नोशन. ये पेपर में आपके आता है, आया है, आता है और आया है. The very first is the external. मतलब ट्रेडिशनल में एक्सटर्नली अगर हम कहते हैं कि भाई कंट्री को थ्रेट है तो वो क्या है, तो दैट इज फर्स्ट. पहले जमाने में वही था, मिलिट्री थ्रेट, क्रॉसिंग ऑफ द बॉर्डर, बॉर्डर से जो आपके लड़ाई होती थी वो. एंड देन अंदर कोई वॉर हो रहा लेकिन इट हैज बीन सपोर्टेड बाय आउटसाइडर्स. और इंटरनल में इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे अगर हम मेकिंग ऑफ यूरोप पढ़ते हैं, नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ते हैं, तो यू विल सी दैट देयर वर थ्रेट्स व्हेन द कम्युनिटीज वर डिफरेंट. लाइक यू आपका अगर हम लोग बोलते हैं यूगोस्लाविया, वहां सर्ब्स एंड जो आपके अदर थे उनके बीच में लड़ाई थी विद इन द कंट्री. तो दैट वाज वन. So in that way, traditional notion is about security where it is endangered. And under the traditional only, under non-traditional, it is hunger. South Africa is the example. Disease, natural disasters, global security, क्योंकि उसकी वजह से there are refugees, there are infiltration, there are other problems which come across. Then global warming, international terrorism, ये हमारे आए. अब जो अगर हम न्यू सोर्सेस बोलते हैं तो न्यू सोर्सेस में बॉर्डर वाला तो बहुत reduce हो चुका है. I will not say that it has completely ended.
But still, if you look at the current world after 1980s, the borders have been closed. सभी कंट्रीज ने अपने बॉर्डर्स का एक क्लोज बना दिया है. नो कंट्री नाउ इंटेंशनली वांट टू कॉन्कर अदर कंट्री, किसी और कंट्री को. पहले क्या होता था, राजा अगर एक जगह का राजा है तो वो दूसरी जगह को भी अपना बनाना चाहता था. बट नाउ पीपल वांट कि जिस एरिया में वो है उस एरिया को वो प्रोटेक्ट कर ले. दे आर नॉट इन द ग्रीड दैट कि दे हैव टू इंटेंशनली कॉन्कर अदर्स. तो वो एक बॉर्डर को क्लोज करना जो है, दैट हैज बिकम वन पर्टिकुलर solution that has been taken. और कोल्ड वॉर के टाइम पर, if we talk about the cold war era, when there was a complete एक मतलब कि anticipation था that there might be a third world war between USSR and USA, उसमें many countries realized the importance of security. And then the organizations like UN, those who have been guarding the principles of security, UN Security Council, उसकी वजह से भी जो वॉर लाइक सिचुएशन है, दैट हैज ट्राइड टू, मतलब कि उसको जो है बैलेंस करने की कोशिश की गई है. ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, बट दे हैव नेवर गॉन इनटू अ सीरियस इन्वेशन और कॉन्कर. दे एंडेड अमिकबली और नेगोशिएट हुआ या फिर पीछे हट गए, जिसको हम बोलते हैं डिटरेंस. We call it as a policy of deterrence. So the new sources of threat now is, as I said, it is not completely eliminated, but then थोड़ा बहुत है. But अब terrorism has become one major, you can say, challenge for all the countries. Now terrorism जो है, it is not something जहां पर the country's military or the security is endangered. Terrorism is where the civilians are targeted deliberately and indiscriminately. मतलब यहां पर सिर्फ पॉलिटिकल अपना एडवांटेज लेने के लिए जो टेररिस्ट होते हैं, वो लोग जो है सिविलियंस को टारगेट करते हैं, ताकि जब उनमें दहशत पैदा होगा तो गवर्नमेंट उनके उनके जो अनड्यू मतलब की मांगे हैं उनको पूरा करे. In your book, I think the chapter, the movie Roja is has been portrayed. उसके अंदर वो जो इंजीनियर होता है, पता नहीं कौन होता है, he is kidnapped and उसके बदले जो है they ask for the people who have been captured. और ऐसे कई मूवीज, ऐसे कई आपके नेटफ्लिक्स में ऐसे कई वेब सीरीज आते रहते हैं. So this is where terrorism, and terrorism जो है पहले initially it was only in some parts of the countries of the world. टेरर जो वर्ड आता था, इट वॉज नॉट associated with each and every country, but today it is associated with all the countries. WTO, sorry, जो वर्ल्ड टावर पर जब आपका अटैक हुआ था, which we call as the 13/11 जो आपका हुआ था, 13/9, that is one of the key example कि now terrorism is not confined to a country, now it is everywhere. एंड इंटरनेशनल लॉज उनके लिए बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं टू डील विद देम. देन हेल्थ एपिडेमिक, अभी हमारा जो 3 साल गया था, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर हेल्थ एपिडेमिक. HIV वे एड्स जो है, तो इट हैज बीन टैकल्ड विद सर्टेन मेजर्स. बर्ड फ्लू, सार्स, अभी जो कोविड हुआ था, एंड वी नेवर नो दैट अगला हेल्थ एपिडेमिक कब होगा. And that is also targeting, that is also a threat. Migration, recent, I think in Delhi there is we are having the elections, and if you talk about Delhi's manifestos, there is one word called illegal immigrations, refugees. तो जो माइग्रेशन है, इट हैज बिकम एन इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रिक्शन. अभी इफ यू नो, ट्रम्प इज सेंडिंग बैक many of the illegal migrants to their countries.
इफ यू सी। और जो कंट्रीज मना कर रही है कि हम उनको वापस नहीं लेंगे, वो सैंक्शंस को मतलब कि क्रॉस वो कर रहा है। एंड दिस इज शोइंग द पॉलिटिकल, इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रिक्शन। ग्लोबल पोवर्टी, क्योंकि पोवर्टी रहेगी, क्राइम बढ़ेगा। क्राइम बढ़ेगा तो क्राइम कैन टेक एनी फॉर्म। Crime doesn't take any one form. It doesn't take the form of murder. It can take the form of terrorism. And there have been examples. If you talk about any terrorist, you will find that poverty has been one of the key reasons. Then, on the global front, ऐसी चीजें like political rights, speech freedom, economic rights, human rights, इनके ऊपर भी बहुत सारे चर्चे हैं, because they are also threats. In the Guantanamo Bay, जब आपके वर्ल्ड टावर पर इन अमेरिका पेंटागन बिल्डिंग पर जब अटैक हुआ था, so it was openly said that human rights had been violated. 600 prisoners across Asia, across the world, they were taken without any trial. They were taken and they were put into the Guantanamo Bay, which is one of the jail, which is one of the deadliest jail. And they were not provided with any kind of assistance. They were not allowed to meet their family. They were not allowed to go to the court. तो ये भी तो एक थ्रेट हुआ ना। अगर कोई कंट्री ऐसा करता है, वो क्या सही बात है? इट वॉज डन बाय यूएस, बट इज इट राइट? नो। No country should target any other country on this basis. Everything we need to settle it in the proper manner. लेकिन अगर ऐसा कोई कंट्री करता है, तो हो सकता है जवाब में ऐसा हो सकता है कि दूसरी कंट्री वेपन उठा ले। सो दीज आर द न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट। आपके पेपर के अंदर इन दोनों में से आपका ये जो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, इंटरनल और एक्सटर्नल वाला बहुत उसमें भी आया है। देन व्हाट आर द न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट भी आया है। Now, what are the steps taken by India to secure its to have the security? इंडिया बहुत सारी चीजों में यूएन के अंदर अपना सीट मांग रहा है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज बिकॉज इंडिया वांट्स टू एस्टैब्लिश its strength across every field. It wants the international norms and international institution जो है उसको support करता है, and whenever wherever there has been a requirement, India has always supported the right cause. It has been member, the temporary member जहां होता है, it has been elected and it has tried to gear up all the challenges. इवन विद इन द कंट्री, अगर हम सेकेंड बुक को लेकर चलते हैं, तो हमने सेकेंड बुक में रीजनल एस्पिरेशन पढ़ा था। हमने सेकेंड बुक के अंदर जो है पंजाब वाला पढ़ा था। some of the topics which are deleted, even I have given you a glimpse of that. So what has done, क्या किसी चीज से हम लोगों को नुकसान हुआ? Was it on a mass kind? No. Whenever there was an internal security challenge, India took stern steps, whether it is Blue Star operation, whether it was some other kind of violence, Naxalism movement, India ने उसको जो है डील किया है. It has not allowed any of its enemy country to intervene in its policy. देन अगर हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं हेल्थ सिंड्रोम, ग्लोबल पोवर्टी, इनको भी डील करने के लिए the government has taken steps and the government is taking steps to mitigate such problems. जो huge economic inequalities हैं उनके लिए कोशिश कर रही है by starting many government program, poverty alleviation programs, इनको भी जो है डील करने के लिए, देन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल, अगर आपका जो है अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर उसको टैकल करने के लिए। देन व्हेन वी टॉक अबाउट दैट वन नेशन वन, मतलब कि
रिकॉग्निशन, वो भी एक इसी को लेकर है कि देयर इज नो illegal infiltration into the country. So India is trying to gear up with the security, and अगर हम border threats बोलते हैं तो no doubt border threats हमारे रहते हैं, because India strategically it is in between. हम अगर अपने आप को देखते हैं, अगर हम अपने मैप को देखते हैं, तो वी आर इन बिटवीन। हमारे ऊपर जो है वी आर हैविंग अनदर कंट्री चाइना, इधर हमारे पाकिस्तान है, उधर आपके जो है यू आर हैविंग अदर एशियन कंट्रीज। सो डेफिनेटली वी आर इन सच अ मिड पोजिशन जहां पर वी नीड टू सिक्योर आवरसेल्व्स, yet no conflict has gone into a very disastrous war. अगर हम अपने उसके ओवरऑल में देखते हैं तो 47 में हमारा इन्फिल्ट्रेशन हुआ था बाय पाकिस्तान, देन 65 देयर वर टू वॉर, एक 62 एक आपका, देन 65 आपका, देन 71 दैट वाज अ वॉर व्हिच वी हैड इंटेंडेड टू सपोर्ट बांग्लादेश। फिर आपका एक जो मेजर हुआ था वो कारगिल था। we have tried not to escalate or not to come to that situation जहां आपका जो है entire security जो है that becomes a मतलब कि that there is a threat to the entire security. So this is what security in the contemporary world represents. And you will be having very short question, maybe a 2 marker question, जो traditional वाला वो 2 mark में ही आया है हमेशा. So you may be having a question from that only, how it is different. And India's strategy towards its security. ये दो आपके जो है इंपॉर्टेंट। अब आता है आपका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में से यू कैन एक्सपेक्ट अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जितने आपको यहाँ स्लाइड्स दिखाई दे रहे हैं, हर एक से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, वेदर इट इज अ 1 marker, 2 marker, वेदर इट इज अ 6 marker, आपको सारे तरीके के क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। Means if you see from the examination point, this chapter carries more weightage. So why we need an international organization, या what are international organizations? See, for governing our own country we have a government. To secure ourselves, to make laws, to have a uniformity, we have certain principles. But when it comes to the वर्ल्ड लेवल, वहां कौन करेगा? अभी हमने ऊपर पढ़ा ट्रेडिशनल आपके जो है सिक्योरिटी वाज बॉर्डर सिक्योरिटी, तो हाउ कुड इट बी डेड? अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का सिचुएशन देखते हैं तो द वर्ल्ड ऑलवेज हैड गॉन थ्रू सर्टेन earthquakes, not that earthquake, I mean to say a kind of jolt. The First World War resulted in casualties. The Second World War resulted in more casualties. It also gave a situation where countries were hostile to each other. और तभी जरूरत पड़ी थी कि एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जरूरत है हमको। We need a politics where all the people across the world have certain faith, something, and वहां हमारा आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, those organizations which discuss, which resolve contentious issues, कोई भी ऐसा जिससे कि खतरा हो उनको करें, टेक केयर, टेक मेजर्स जहां पर दे आर, एंड सेट अप सर्टेन रूल्स सो दैट एवरीवन इज बेनिफिटेड। और अगर हम इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बोलते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है हमारा यूएन। एंड व्हेन वी से यूएन, यूएन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बैकड्रॉप पे बना था। इट वॉज फाउंड इन 1945। ये पूरा आपका 1 marker है, ये पूरा 1 marker में आता है।
एंड पहले आपके थे कुछ लीग ऑफ नेशंस, यानी कि जो लोग, एंड हिटलर ने जो है अपने आप को पुल ऑफ कर लिया था फ्रॉम द लीग ऑफ नेशंस, एंड उसी को सक्सीड करते हुए आपका यूएन बना था विद द यूएन चार्टर, जिसमें 51 नेशंस ने पहले साइन किया था, एंड दैट वाज ओनली टू प्रमोट हार्मनी, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करने के लिए, एंड दैट इफ द वॉर इज इवन देयर इट शुड नॉट रिजल्ट इन कैजुअलिटीज। ये आपका सारा वन मार्कर में आता है। एंड बाय 2006 वी हैड 192 मेंबर स्टेट्स, एंड इसके अंदर आपका आता है जनरल असेंबली, जिसमें एवरी मेंबर स्टेट हैज वन वोट, यानी कि दे फॉलो अ डेमोक्रेटिक अप्रोच। बट ऑफ कोर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल अगर हम बोलते हैं तो दे हैव, अब ये सिक्योरिटी काउंसिल में व्हाई देयर इज सम डिफरेंस, बिकॉज इट इज डीलिंग विद द सिक्योरिटी, जो ऊपर हमने अभी नेक्स्ट पहला चैप्टर पढ़ा था वो। वी हैव 5 permanent members, and ये जो members थे they were given this membership on the basis of the contribution they are making to the UN and on the military power they were having. तो US, Russia, UK, France and China. Whereas non-permanent आपके सारे रहते हैं, they have a tenure and they move on. What does the UN Security Council do? ये आपके पेपर के अंदर जो है आपका 2 मार्क्स में आता है, और जो रिफॉर्म वाले क्वेश्चंस हैं ये आपके 4 मार्कर 6 मार्क्स ऐसे आते हैं। तो द यूएनएससी जो है दे आर द मोस्ट पावरफुल, बिकॉज इनके पास जो है दे हैव 2 kinds ऑफ मेंबर्स, वन द परमानेंट एंड अनदर नॉन परमानेंट। तो द परमानेंट मेंबर्स जो हैं दे वर द वन हुम आई सेड, जिनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, जिनके पास मिलिट्री पावर था, दोज हु वर द विक्टर्स, और इनके लिए जो है मतलब कि इनको वीटो पावर दिया जाता है, यानी कि दे कैन हॉल्ट एनी डिसीजन, एंड अगर वो नहीं हुआ तो दैट डिसीजन कैन बी स्टॉप फॉर एवर। एंड जो नॉन परमानेंट है दे आर 2 years का है, एंड इंडिया हैज बीन इन दैट। नॉर्मली जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड ऑन द मैनर की जो कॉन्टिनेंट्स को वो बिलोंग कर रहे हैं उसको वो रिप्रेजेंट करे, लाइक इंडिया एशिया साउथ एशिया को रिप्रेजेंट कर लेता है। बट आफ्टर द कोल्ड वॉर देयर हैड बीन लॉट्स ऑफ कई बार ये बोला गया कि यूएन जो है इट्स नॉट दैट मच सक्सेसफुल इन टैकलिंग मेनी सिचुएशंस। देयर हैव बीन क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द वर्किंग ऑफ यूएन। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई हैं, एंड दे हैव बीन आस्किंग फॉर द बेसिक चेंजेस इन द स्ट्रक्चर, मतलब उसके बनावट में भी, उनके काम करने में भी, उनके ऑब्जेक्टिव में भी, दैट इज दे आर फेसिंग। One is the reform of the organizational structure and the issues that are falling. As I said, the 2 basic, और ये आपका जो है you can expect in the 2 marker question कि what are the things they are facing. तो one is about the structure, यानी कि only why 5 permanent, तब तो आपके पास country 51 था, तो 51 में 5 मेंबर्स को आपने दिया था, नाउ देयर आर 192 कंट्रीज, तो 192 को भी आप 5 मेंबर्स को दे रहे हो। इज इट नॉट दैट की वी रिक्वायर मोर परमानेंट मेंबर्स? बिकॉज उस वक्त में जो वर्ल्ड इकोनॉमी था वो बिल्कुल अलग था, देयर वर कंट्रीज विच कुड नॉट कंट्रीब्यूट। आज जो है देयर आर सो मेनी कंट्रीज विच आर कंट्रीब्यूटिंग और विच कैन कंट्रीब्यूट, लाइक जापान जो है इट इज मोर पावरफुल। जापान डज नॉट वांट टू कम अंडर, दिस इज बिकॉज जापान ने अपना एक वो बनाया था कि दे वुड गो फॉर अ नो वॉर। बट इफ वी टॉक अबाउट, तो देयर इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रांग, South Korea is very strong. India is a developing nation. So why they are not going to be given? Then कुछ areas उनके जो है now they have to be distributed, they have to be redistributed. This is what the areas, यानी कि the biggest is increasing UN Security Councils permanent and non-permanent, जो already मैं आपको बता चुकी। उनका मानना है कि एशिया से कोई भी नहीं है। अगर आप 5 परमानेंट मेंबर्स देखते हो, यूएस है, यूएस इज आपका वेस्ट, रशिया, यूके, फ्रांस,
ये आपका यूरोप है एंड चाइना आपका ऊपर है। तो एशियन में से कौन है? साउथ अफ्रीका में से कौन है? ऑस्ट्रेलिया में से कौन है? देयर इज नो वन। तो व्हाई नॉट दे शुड बी रिप्रेजेंटेड? देन that is the main, and US and other Western countries want improvement in the budgetary process and its administration. Abhi, I think there was one recent change in US. They said कि they wanted to withdraw from WHO. तो that is why क्यों ऐसी countries ऐसा चाहती हैं? क्योंकि if they are not benefited, they will not contribute. So why these reforms were needed? ये मैं already आपको बता चुकी हूँ that UN was established immediately after the Second World War. After the Cold War, realities are different. Like the Soviet War अब नहीं है, पहले तो USSR था, अब नहीं है. Secondly, US अभी अगर बोला जाए तो यूनी पावर तो नहीं बोल सकते, बट स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है. Now the relations between US and Russia have मतलब कि has improved. China is doing better. देन एशिया के अंदर भी अगर आप एशियन कंट्रीज को देखते हो, इफ यू टॉक अबाउट, हम लोगों ने पढ़ा था सिंगापुर, मलेशिया, इंडिया, दे आर ऑल डेवलपिंग. न्यू कंट्रीज हैव जॉइंड. नाउ देयर आर सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स लाइक सिविल वॉर, टेररिज्म, न्यूक्लियर. तो बहुत सारे जो न्यू चैलेंजेस हैं, दे आर नॉट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएन. तो देयर इज अ डायर नीड कि इन चीजों को किया जाए. ये वाला जो है आपका दिस वन कि व्हाट आर द रिफॉर्म्स दे वांट, ये एक बार आया है, लेकिन इंडिया वाला बार बार आया है. ये एक बार आया है, इंडिया वाला बार बार आया है. द जनरल असेंबली अडॉप्टेड रेजोल्यूशन जिसमें कहा गया था द सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स कॉन्टेम्पररी पॉलिटिकल रियलिटीज. अभी रियलिटीज बिल्कुल अलग है. Its decision reflect only the Western values, not about the other countries. There is non-equitable representation, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. साउथ अफ्रीका से कौन सा आपका परमानेंट मेंबर है? एशिया से कौन है? ऑस्ट्रेलिया से कौन है? सो इवन कॉफी एनन, ये पेपर में आया हुआ है, दिस पेपर में कॉफी एनन के दो क्वेश्चंस आए हुए हैं. He even had initiated an inquiry कि हमें कैसे करना चाहिए. So this was a suggestion given. ये पेपर में आया हुआ है. This is an important one. First is, अगर एक नया मेंबर बन रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड हैव अ मेजर इकोनॉमिक पावर, मेजर मिलिट्री, देन यूएन के बजट को कंट्रीब्यूट करे, पॉपुलेशन में भी अच्छा हो, विच इज रिस्पेक्टिंग जहां पर इंस्टेबिलिटी नहीं है, डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स को फॉलो कर रहा है, एंड अपने एरिया को वो रिप्रेजेंट कर सकता है इन ऑल द वे. ये उन्होंने जो है क्राइटेरिया रखा है. एंड इफ यू लुक इनटू दिस क्राइटेरिया, इंडिया सारे के सारी चीजों में पूरा आगे है. इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमिक पावर, one of the major military power in fact in the world. They are contributing to UN in all the ways. Population में we are the most populous country in the world. We have been democratic since our independence, and we can also represent the country. क्योंकि हम एशिया के हैं तो हमारे एशियन जो भाई बहन हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सबको हम कर सकते हैं. तो व्हाई इंडिया इज नॉट गेटिंग? दे हैव ऑल्सो प्रपोज्ड when there was 60 years था, तो they have also proposed कि there should be a peace building commission, acceptance of responsibility. जब गवर्नमेंट नहीं कर पाती है, अपनी सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है,
तो इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल आपकी ट्रिब्यूनल्स एंड कमीशन है, दे कैन इंटरवीन। मतलब अगर मान लो किसी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट अपने, जैसे सूडान के अंदर दारफुर है, दारफुर के अंदर देर इज, ये पेपर में आया है, दारफुर के अंदर देर इज एक्सट्रीम पोवर्टी एंड द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू डील विद दैट। तो वहां पर इट इज नॉट दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट से ये हमारी प्रॉब्लम है। नाउ इट इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, क्योंकि टुडे इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑल्सो मीन्स पोवर्टी। तो द यूएन कैन इंटरफेयर। देयर कैन बी ह्यूमन राइट्स कमीशन विच हैज ऑलरेडी बीन देयर, करते हैं वो लोग। देयर इज डेवलपमेंटल गोल्स रखे हैं, टेररिज्म को हर तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है, एंड ऑल्सो टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल विच हैज बीन डन। नाउ व्हाट डज इंडिया स्टैंड सेज, आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला भी आता है और एक और भी आता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंडिया ऑलवेज हैज सपोर्टेड यूएन। इनफैक्ट वी वर वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, हम लोग फाउंडिंग मेंबर्स जब हमने साइन किया था तो वी वर ऑल्सो देयर। वी हैव नेवर, मतलब कि हमने कभी भी जो है ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया। वी हैव ऑलवेज सपोर्टेड इट्स रोल इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट कोऑपरेशन। इंडिया इज मेंबर ऑफ WTO ऑल्सो, वर्ल्ड ट्रेड का भी एक मेंबर है। believes that development should be the central agenda of UN. It also believes that the Security Council जो है उसको थोड़ा चेंज करना है, because as I said, जब 51 मेंबर्स थे तो 5 आपके परमानेंट थे, 192 में भी एटलीस्ट देयर शुड बी। In 1965 the members of Security Council became 11 to 15, लेकिन परमानेंट मेंबर्स आपके वही हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन यूएन जनरल जो असेंबली है, उनको दे हैव टू बी गिवन सम रोल। It wants that there should be increase in the permanent and non-permanent members. They should have more people from the developing countries, and India itself wishes to be a member, permanent member. अब इंडिया क्यों चाहती है, दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। मतलब अगर मैं जैसे बोलती हूँ कि स्टार्टिंग में तो कुछ क्वेश्चन से दे हैव बीन देयर, बट दिस हैज बीन रिपीटेडली। दिस इज बिकॉज दिस इज वेरी रेलेवेंट टू आवर पॉलिटिक्स। अभी हमारा जो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं तो इंडिया ने अभी जितनी भी लड़ाइयां हुई है, यूक्रेन, रशिया, we have not supported any one country, but we have supported all the countries. We have friendly relations with Israel, we have friendly relations with Ukraine, we have friendly relations with Russia. We have tried to intervene and we have tried to build up friendly relations. तो जब इंडिया इतना मीडिएट कर रहा है, India is now one of the powerful countries among the world. When many of the countries are allowing Indians to travel visa free, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होती है, जब हम लोगों को इतना प्रिविलेज मिल रहा है तो व्हाई वी हैव नॉट स्टिल गॉट द परमानेंट मेंबरशिप? एंड इफ यू लुक इनटू द क्राइटेरिया, वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, नॉट द सेकेंड मोस्ट, मोस्ट पॉपुलस। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और हमारी डेमोक्रेसी हैज बीन स्टेबल। Like if we talk about Pakistan or Bangladesh, वहां पर जो है there has been democracy, but there have been they also faced military and dictatorship. हमारे ऐसा नहीं रहा। We had supported the world peace. हम रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर्स हैं, मेजर नहीं है लेकिन रेगुलर हैं। हम इकोनॉमी में ग्रो कर रहे हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसीज हमने चेंज की हैं। तो व्हाई इंडिया इज नॉट गेटिंग दैट? कुछ कंट्रीज का मानना है, बट क्योंकि वीटो पावर आता है यहाँ पर, तो सम कंट्रीज बिलीव कि इंडिया जो है न्यूक्लियर केपेबल है। एंड आफ्टर 1968 देयर वर सम ट्रीटीज साइंड
which did not allow the countries to produce nuclear weapons, but India had done it on scientific ground. तो ये हमारे लिए एक कंसर्न है कि कल को अगर हमने वेपन उठाए, देन आर ट्रबल्स विद आवर नेबर्स, क्योंकि अगर हमारे पास, मतलब दूसरों का मानना, हमारा नहीं, दूसरों का मानना है कि अगर इंडिया के पास वीटो पावर आ गया तो दे मे मिस यूज इट अगेंस्ट पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री। देन अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो देन साउथ अफ्रीका, which is itself a very big continent, Japan, as I said, it's a very big economic, जर्मनी एंड जापान जो है इकोनॉमिक जायंट्स हैं, तो उनको क्यों नहीं किया जा रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड बी गिवन बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डेवलप। इंडिया तो फिर भी डेवलपिंग है, लेकिन वो तो डेवलप कर चुके हैं। जापान अपने पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर सकता है, साउथ अफ्रीका पूरे कॉन्टिनेंट को कर सकता है, व्हाई दे हैव बीन नॉट बीन गिवन? जब उनको नहीं मिला तो इंडिया को क्यों मिल रहा है? एंड इन चैलेंजेस की वजह से वी आर नॉट गेटिंग द परमानेंट सीट। बट अगर देखा जाए तो वी आर एलिजिबल एंड वी मस्ट गेट इट, नो डाउट। इंडिया हैज गॉट इट सीट, आपके 2 years के लिए उसको मिला है, इट हैज बीन वर्किंग बहुत अच्छे से, बट दैट इज नॉट इनफ। एंड 2 years in today's date is very less, it should at least be 5 years. So now what is the situation of UN in a unipolar world? No doubt यूएन इतना रेलेवेंट नहीं रहा है। ये पेपर में आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आया है, द यूएन इज नॉट रेलेवेंट इन द करंट सिचुएशन। तो यस, अगर हम देखते हैं तो यूएसएसआर तो अब है नहीं, तो यूएस इज देयर, एंड यूएस जो है दैट डजंट बॉदर मच अबाउट यूएन, बिकॉज अमेरिका इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर फिजिकली, अगर उसकी बिल्डिंग भी वॉशिंगटन में है। यूएस के कई लोग जो हैं दे आर वर्किंग इन यूएन, एंड इस वजह से क्या है कि यूएन जो है इट यूजेस इट्स पावर टू स्प्लिट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स यूएस का पावर यूएन में ज्यादा है, तो यूएन इज नॉट वर्किंग इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। और ये हमारे एक बहुत पहले, अभी तो नहीं है, अभी फॉर 5 years दिस चैप्टर हैज बीन रिमूव, दैट वाज देयर इन द फर्स्ट चैप्टर में था हमारा द सेम क्वेश्चन इन 9th standard, इन 9th standard that had that ये same question था कि why UN cannot be called democratic? That is because democracy means equal participation, equal representation. But many of the, जैसे वहां के जो ट्रेजरी है, ये पेपर में वो इसी में था, the treasurer, they are always elected from US. Why? Why? Why a treasury of UN should be only a US? Why not an Indian? Why not a Chinese? Why not anybody else? Now, but अगर UN नहीं है तो कुछ नहीं है, because we need something जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करे। It has served to bring us, US and rest for the world into discussion. UN का होना हमारे लिए जरूरी है। UN is a space where the arguments take place. No doubt it is giving support to US, that is because of its structural policies. तो structural policies के अंदर changes लाना होगा, and we need that even in this imperfect body, even it is an imperfect body, UN has to be there, because अगर UN जैसा कोई नहीं होगा ना तो the world will again go into the same area which it was there before the inception of UN. It is there. दोबारा लोग लड़ने में चले जाएंगे. Considering the interdependence of nation on each other, UN becomes indispensable.
बिकॉज यूएन के एक थोड़ी है, यूएन के कई ऑर्गन्स हैं, दे आर डीलिंग विथ सो मेनी थिंग्स। डायरेक्टली भी कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ की जैसे, इनडायरेक्टली भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू भी कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एंड टेक्नोलॉजी प्रोमिसेस टू इंक्रीज द प्लानिटरी इंटरडिपेंडेंस, देयरफॉर यूएन जो है उसका होना बहुत जरूरी है। इट नीड्स टू बी देयर टू इंटरवीन, टू टैकल द प्रॉब्लम्स, टू टैकल द इश्यूज। हाँ, थोड़ा उसको मतलब कि नॉन बायस होना पड़ेगा, थोड़ा उसको स्ट्रक्चरल चेंज जो पहले हमने बोला है, द वन विच हैज बीन प्रपोज्ड, लाइक नंबर ऑफ people to be increased in the permanent and non permanent categories, the jurisdiction, वो उनको जरूर करना पड़ेगा, that has to be done, otherwise आगे आने वाले टाइम में यूएन का जो रिलेवेंस है वो खत्म हो जाएगा। Secondly, they need to see the proportion that proportionately the numbers of the members have increased, proportionately the number of permanent members and non-permanent has to be increased, and the tenure which they are dealing, it has to be increased. But अगर हम कहें कि UN is now, ये पेपर में आया हुआ है, that UN does not have any relevance in the current situation, so that cannot be there. It is imperfect, but it has to be there so that the world does not again fall into another world war, or there is no other weapon war where there is mass destruction, which it was there in the earlier period. So that is aapke international organizations and why we need these, right?